ধরুন আপনি কাউকে খুব ভালোবাসেন, কিন্তু সেই ভালোবাসার মানুষটা আপনাকে ছেড়ে পার্থিব মায়া কাটিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনার রেশ আপনার কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। তবে সেই রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই সেই ভালোবাসার মানুষকে যদি আবার আপনি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেন, তাহলে কি হবে? হঠাৎ আপনি ভাববেন যে ভুল দেখছেন, আর তা না হলে ভাববেন ভূত দেখছেন। কি বিষয়টা একটু অন্যরকম লাগছে, তাই তো? আসলে 2 বছর পর মৃত বউ জ্যান্ত হয়ে ফিরে এলো, আর তা হতেই রীতিমতন কেচ্ছা ফাঁস হয়ে গেল। কি হয়েছিল এবার আপনাদেরকে একটুখানি বলি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। বউকে মৃত বলে ধরে নিয়েছিল সবাই, কিন্তু রুচি নামের ওই মহিলা বাস্তবে তো মৃতই নন, বরং গত 2 বছর ধরে তিনি তার প্রেমিকের সঙ্গে গোয়ালিয়রে দিব্য বসবাস করছেন। আর এদিকে রুচির স্বামী, শাশুড়ি এবং পরিবারের 4 জনের বিরুদ্ধে তখন যৌতুকের জন্য জানে শেষ করে দেওয়ার মতো এবং প্রমাণ লোপাটের মতো গুরুতর অভিযোগও উঠছিল। পুলিশ যখন তদন্ত শুরু করে তখন পুরো বিষয়টা সামনে আসে, মানে ব্যাপারটা পুরোপুরি মন গড়া। গাজীপুরের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভজুরাই গ্রামের ঘটনা, যেখানে রুচি নামে একজনের সঙ্গে রাজেন্দ্র যাদবের বিয়ে হয়েছিল 2023 সালে। ওই বছর 3রা অক্টোবর রুচির মা রাজবন্তী দেবী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন যে পণের দাবিতে নাকি তার মেয়েকে শেষ করে দিয়েছেন শ্বশুরবাড়ির লোকজন, তারপর দেহও নাকি লোপাট করে দিয়েছে। খুব স্বাভাবিক, এই ধরনের অভিযোগ ভীষণই গুরুতর হয়, আর তাই অভিযোগ পেয়ে পুলিশ রুচির স্বামী রাজেন্দ্র যাদব, শাশুড়ি কমলি দেবী এবং আরও 4 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মামলার তদন্ত শুরু করেন সার্কেল অফিসার রামকৃষ্ণ তিওয়ারি। এরপর তদন্ত করতেই কেচ্ছা একেবারে সামনে চলে আসে। পুলিশ জানতে পারে রুচির তো মৃত্যু হয়নি, উপরন্তু সে তার প্রেমিকের সঙ্গে দিব্য সংসার করছে। তার প্রেমিকের নাম গজেন্দ্র যাদব, মানে পুরো কেসটাই একেবারে ভুয়ো। 7ই অক্টোবর রুচিকে পুলিশ উদ্ধার করে। রুচির স্বামীর কথায় তারা নির্দোষ। জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে রুচি জানিয়েছে যে রাজেন্দ্রকে তার বিয়ে করার কোনো রকম কোনো ইচ্ছে ছিল না, কারণ গজেন্দ্রকে সে ভালোবাসত। এরপর গজেন্দ্রকে বিয়ে করার জন্য এইভাবে নাটক করে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই মুহূর্তে স্ক্রিনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন ইনি হচ্ছেন সেই রুচি, যিনি কিন্তু নিজের মৃত্যুর নাটক তৈরি করেছিলেন। রুচির স্বামী বলছেন যে তারা নির্দোষ, তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তার স্ত্রী বিয়ের পর থেকে তার সঙ্গে কোনোদিন থাকতেই চাননি, নিত্যদিনের অশান্তি ছিল তাদের সঙ্গী। রুচির বাবা মা গজেন্দ্রর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও জানতেন, কিন্তু তারা মেয়েকে কিছুই বোঝাননি। শোনাবো আপনাদের রাজেন্দ্র যাদব কি বলছেন। जी सर, हमारा शादी 6 जून 2023 को हुई थी, जो रीति रिवाज से हुई। तो उसके जब हम शादी करके लाए तो हमारे साथ वो गलत व्यवहार करने लगी, मारपीट करने लगी, बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो हमारा दबाव में शादी हुआ है, ये भी बोल रही थी कि हमारा दबाव में शादी हुआ है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जीवन बीतेगा, हमको यहाँ से जाने दो, हम जाएंगे यहाँ से। बार बार यही मांग कर रही थी सर। तो उसके बाद हम उसके पापा को, उसके माँ को, उसके भाई को बुलाए कि ऐसा ऐसा बात बोल रही है। तो उसके माँ पापा हमारे उसको समझाएं। उसके बाद हमारे पैरों पर गिर गए, बोले कि हमारी इज्जत रख लो। तो हम लोग उसका लाज रख के हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग सोचे, बोले उसका पापा बोले कि रहते रहते रह जाएगी, संभर जाएगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं किए सर, हम लोग भी छोड़ो जाने दो, ये सब बात उसके पापा समझा के गए। लेकिन होते होते इतना आगे बढ़ गई कि हम लोग को कुछ समझने नहीं लगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं उतना ध्यान दिए सर। तो होते होते तो विदा करा के ले गया उसका भाई यहाँ से रक्षाबंधन में। तो हम लोग भी विदा कराने का डेट रखा 17 जून को। हम लोग भी गए उसके घर, तो उसका भाई बोला कि वो तो कहीं चली गई। तो हम लोग भी बोले कि सर कि चली गई तो हमें क्यों नहीं बताया तू। तो बोला कि चली गई तो चली गई, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारे द्वार से तुम लोग भागो यहाँ से। हम लोग को मारने पीटने लगा। तो इसके बाद हम लोग भी चले आए तो हम लोग भी वहाँ उसके चौकी पर गए थे। कहाँ चौकी पर डला?
मखदूमपुर चौकी पर गए थे, तो हम लोग भी वहाँ बोले कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो वहाँ भी, तो वहाँ से आदमी भेजा, तो वहाँ लिखा पढ़ी हुई, तो हम लोगों को बोला कि तुम लोग जाओ, हम लोग जो होगा यहाँ समझ लेंगे, वहाँ का बोला। तो हम लोग चले आए घर, तो हम लोग भी चुपचाप रहे, हम लोग भी कुछ नहीं किए। तो उसके बाद वो, की बात है ये 17 ही जून का बात है। ये 17 जन हाँ 2025 हाँ इसी 2025 हाँ इसी साल का। हाँ, तो आके हमारे मखदूमपुर में वो केस किया कि दहेज मांग रहा है लड़का, ये वो फलाना ठिकाना लिखाया, वो झूठी दहेज लिखाया, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुआ। तो हम लोग भी गए, तो हम लोग भी अपना सफाई बतियाए, तो वहाँ भी उसका केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा चुका था अपनी बहन का। अच्छा, हाँ, प्लानिंग से वो गुमशुदा का रिपोर्ट लिखा चुका था। वो गुमशुदा का रिपोर्ट जो मखदूमपुर चौकी से जो आया था, उसको भी दिखाया था। हाँ, हमारे खानपुर में भी दिखाया था वो। तो इसके कारण उसका कुछ मुकदमा नहीं हुआ सर। उसके बाद वो क्या किया कि मर्डर का केस लिखा दिया सदा थाने में जाके। तो हमारे ऊपर लड़की पत्नी का नाम क्या था? रुचि, उसकी मौत का, हत्या का केस लिखा दिया आप लोगों के खिलाफ। हाँ, 6 आदमी था उसमें। नामजद कौन हुआ? नाम हम थे, हमारी मम्मी थी, नाम बोलना। ठीक है। हमारी मम्मी थी, हमारा छोटा भाई मुन्ना था, जिसमें हमारी बहन थी जो कि वहीं रहती है व्यापारे में। हमारा भगना है, उसका भी लिखाया था। 6 लोग। उसके बाद तो लिखा दिया, तो हमारे यहाँ पुलिस आई थी, तो बोला कि तुम लोग को तो मर्डर केस लिखा गया है, रुचि तो मर गई। तो हमारी माँ रोने लगी, तो हम लोग को बुलाहट हुआ, हम लोग भी सीओ साहब के पास गए। तो हम लोग भी गुर्राह किए कि सर हम लोग निर्दोष है, हम लोग को फंसाया जा रहा है, इसके विषय में आप छानबीन करिए। लेकिन पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा काम की, हम उसके बहुत आभारी हैं। क्या अच्छा काम किया कि उसके मैंने छानबीन, जितने हमारे पास नंबर जो निकला, हम भी खोजे कि नंबर जिससे बात करती थी, नंबर छोड़ के गई थी, इसी के लिए वो छानबीन हुआ, वो मिली। সার্কেল অফিসার রামকৃষ্ণ তিওয়ারি পুরো বিষয়টা আরো খোলসা করে বলছেন এবং তিনি বলছেন যে তদন্তে কিভাবে কি প্রমাণিত হয়েছে, কি বলছেন তিনি শোনাবো। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना 7 के अंतर्गत ही की गई। सभी समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी के कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद भी चली गई है। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापाल गई, भीमापाल से फिर ये चली गई। एक लड़का है गजन से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था। लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपनी मन से गई थी। लड़की पर किसी ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।